all of you. Good afternoon, all of you. Today we start the lesson, second lesson, periodic classification of elements. In this lesson, we are going to learn which things are present in our nature. The elements are there. Then that elements, there is a three to four scientists are there, and they do the periodic tables. Now, in this lesson, we are going to learn the Newton's law of octave, then Doberanger's triad, and there is a modern periodic table. That modern periodic table means that modern periodic table is prepared by Mendeleev, and that Mendeleev, there is a two types of periodic tables are there. The one is the Mendeleev periodic table, and the second is there is a he did so much different. He did so much changes in that periodic table, and he means उसने क्या किया था, उसमें ना बहुत सारी जो चीजें जो गलत किया था, जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव ने, देन डोबेरायरस ने, तो उनको सही करके उसने वो यूटिलाइज किया था उसमें. तो हम लोग आज वो periodic tables के बारे में पढ़ने वाले. Today we are going to start this lesson. Now in our nature there are 118 elements are present. 118 elements are present in our nature. Now there is a information about the elements. The elements are prepared. Only one item means one atom is there in that elements. Now classification of elements, how they classify the elements. Now there are different types of characteristics are there for the element. Some are metals, some are non-metals. That like that they classify the elements, and they divide them into the groups and subgroups, and we call that dividation. There is a periodic table is there. Now first of all, we are going to learn the Doberan triad. What is the meaning of triad? Triad means there is a three elements are present in the one group. Means there is a three elements they present in the one group, and they have same chemical properties. Now that scientific name is there, Doberan. He keep that three elements in the sequence, and he show the average of these three elements is equal to the means atomic mass of these three elements is equal to the middle one terms. मतलब जो उन्होंने क्या बताया था डोबेरायरस ने, जो थ्री एलिमेंट्स है उनमें अगर आप फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स का आप एवरेज निकालते हो तो उसका जो एटॉमिक मास दोनों का वो आपके जो मिडल्स वाला जो एलिमेंट्स रहता है ना उसके बराबर होता है. तो फॉर एग्जांपल हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में अभी एक एग्जांपल्स उन्होंने दिया है, लिथियम, सोडियम एंड कैल्शियम. Potassium is there. Lithium for Li and sodium for Na and potassium for K. Now there is a atomic mass of lithium is 6.9, and the atomic mass of that potassium is 39.1. Now 6.9 plus 39.1 upon 2 means if you do the average of these two na, then you get the atomic mass of सोडियम. मीन्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. मीन्स लिथियम और पोटेशियम का जो भी आपका एडिशन होगा और उसका जो सारा मतलब आप उसका एवरेज निकालोगे तो आपको वो एवरेज आपके सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल होगा. तो ये डोबेरायरस का था. तो डोबेरायरस ने ये जो डोबेरायरस यूज दिस मेथड फॉर ऑल एलिमेंट्स, बट ही नॉट सक्सीड इन एवरीथिंग because up to calcium he did the same thing, but next after the calcium means there is a no same means there is a average is not same everywhere. That's why Doberanger's is not succeed in this periodic table. Now the another one scientific is come, that scientific name is there Newland's octave. Octave means what is the meaning of octave? Means he used that theory 8 elements. And octave, Newland say the first element is show the same characteristic with the last one 8 elements. Means 8 number का जो elements होगा
और जो फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट्स होगा ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगे, शो करेंगे। तो अभी इसने न्यूलैंड्स में उसने देखो द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स correlated the atomic masses of elements to their property in the different way. In the year 1866, Newlands arranged the element known that टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब न्यूलैंड्स ने क्या किया था, उसके एटॉमिक मास जैसे बढ़ते हैं वैसे उन्होंने उनको क्या किया था, सीक्वेंस में रखा था। नाउ हाइड्रोजन इट स्टार्ट द लाइटेस्ट वेट एलिमेंट्स, मतलब उसने सबसे लाइटेस्ट वेट एलिमेंट्स मतलब हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था। एंड ही एंड्स विद दैट थेरियम, मतलब उसने थेरियम तक उसने क्या किया था, एंड किया था। ही फाउंड द एवरी 8 एलिमेंट्स हैव द सेम प्रॉपर्टी। मतलब जो फॉर एग्जांपल सोडियम इज द 8 एलिमेंट फ्रॉम द लिथियम, लिथियम से सोडियम क्या था, 8 प्लेस पे था। लिथियम से आप काउंट करोगे तो सोडियम 8 प्लेस पे आता है। तो विच वन कैरेक्टरिस्टिक इज देयर लिथियम ना, that same characteristic is there for the sodium is there, means from lithium to sodium there is a lithium and sodium, they have both characteristics same. Now Newlands saying every after 8 elements their characteristic is same. No, that is not happen, मतलब ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका जो उसने जो प्रूव किया ना वो अप टू कैल्शियम तक ही वो था, सीमित था। क्योंकि कैल्शियम के आगे जो एलिमेंट स्टार्ट होता था और उसके आगे जो 8 प्लेस पे जो एलिमेंट्स है, तो उसके और 8 प्लेस के फर्स्ट प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं दिखते थे। इसलिए न्यूलैंड्स का भी क्या हुआ, वो थ्योरी कंप्लीट नहीं हुआ। मींस देयर इज अ सम प्रॉब्लम्स आर क्रिएट। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? Now there is a another one. Now many limitations were found in Newland's octave. मतलब न्यूलैंड्स ने जो पीरियडिक टेबल बनाना चाहता था तो उसमें बहुत सारे लिमिटेशन मींस देयर इज सो मच ड्रॉबैक्स आर देयर। एंड विच वन ड्रॉबैक्स आर देयर, तो उसने जो ड्रॉबैक्स था, तो आपको मालूम है कोबाल्ट और निकेल जो थे, तो ये दोनों के भी एटॉमिक मास से सेम थे। तो उसने उसको इतना प्रॉब्लम्स होता था कि जो एक ही ग्रुप में बिठाने के लिए उसको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे उसके सामने। इसलिए वो जो फर्स्ट एलिमेंट्स और 8 एलिमेंट्स उनका जो कॉम्बिनेशन था, तो वो न्यूलैंड्स को मतलब न्यूलैंड से वो सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए न्यूलैंड्स भी क्या हुआ, उसमें अनसक्सेसफुल हो गया। Now he placed some elements with the different properties under the same node in the octave. For example, Newlands placed the metals cobalt and nickel under the node do along with the halogen, while Fe having similarity with cobalt or nickel away from the along with the non-metal oxygen and sulfur under the node Ti. Means there is a same characters they say show the first and 8 one. That's why Newland's octave also fail in this theory. Now there is another one scientific is come. We are going to start that study now. The Mendeleev's periodic table. Mendeleev's is there. Now the Roman scientific Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements in period of 1869 to 1872. Any Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of elements. Now there is a 63 elements known in that period. In there is a 30, first of all 30 we see in the Doberanus, then there is a octave 63 is there, means step to step the elements are found and they give them proper place in the periodic table. The Mendeleev's also show the same, means Mendeleev's which one periodic table prepared na, that time there is a 63 elements we know, मतलब उसको 63 elements तक ही क्या था मालूम था। Now Mendeleev organized periodic table on the basis of chemical properties and physical properties of that elements. मतलब उसने जो भी periodic table बनाया था, तो वो उसने उस elements के physical और chemical properties को क्या किया था, he give so much weightage. Now atomic masses, then atomic number, this all things he include that
in that periodic table, and he give the proper place to that particular elements. Now there is a, he started from hydrogen. He started from hydrogen, which one is a lightest elements in the periodic table. Now he start the increasing order, मतलब जैसे जैसे उस एटॉमिक नंबर बढ़ते वैसे उसका एटॉमिक नंबर क्या होने लगा, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते थे वैसे वैसे उसने उस एलिमेंट्स को क्या किया था, वो ग्रुप और सब ग्रुप्स में क्या किया था, डिवाइड किया था. Now Mendeleev's organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of element. There were the molecular formula of hydride and oxide. मतलब उधर hydride और oxide का भी उन्होंने क्या किया था, molecular formula को क्या किया था, weightage दिया था. Now in this period, Mendeleev used that periodic table for differentiate the elements like metals, non-metal. देयर इज अ सो मच डिफरेंट मींस उसने बहुत सारे क्या किए थे, चेंजेस किए थे. इसलिए मेंडेलिव को क्या किया था उसने, मतलब वो पीरियोडिक टेबल में उसने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए उसने आगे जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था मेंडेलिव ने. नाउ देयर इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, देयर आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आर देयर. नाउ in the what is the merits are there in the Mendeleev's periodic table. Now the merits means which one is the advantage is there. Now science is progressive, obviously science is progressive means one scientist is come, then second one is come, then he do the same thing. means वो क्या करते थे, देखो जैसे एक साइंटिस्ट अगर कोई प्रोडक्ट के ऊपर फोकस मतलब इन्वेंशन कर रहा है, तो उसमें जो भी ड्रॉबैक्स आते हैं वो दूसरा साइंटिस्ट आके क्या करता है, उसको मतलब फॉलो करता है, और उसमें जो भी ड्रॉबैक्स आते हैं वो क्या करता है, वो मतलब वो कंक्लूजन दूर कर देता है. तो वैसे ही मेंडेलीव ने क्या किया था, डोबेरायस और न्यूलैंड्स का, इन सब का उनमें इन दोनों साइंटिस्ट को जो जो प्रॉब्लम्स आए थे अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल, वो सब उसने देखा. और लाइक एंड ही did the same thing, he also do the which one they do, but he give the weightage to the atomic mass of the elements. मतलब उसने सबसे important क्या किया था, जो एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है उसको क्या किया था, बहुत ज्यादा वेटेज दिया था, और उसके हिसाब से उसने क्या किया था, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल बनाया था. और मेंडेलीव जो था साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया था, जो है ना एलिमेंट्स थे वो क्या होते थे, एक ही साथ सब एलिमेंट्स फाउंड नहीं होते, इसलिए वो टाइम टू टाइम फाउंड होते. तो उसने क्या किया था, जो एलिमेंट्स पहले फाउंड हुए उनको प्रॉपर प्लेस पे रखा, और कोई कोई उसने क्या किया था, अगर कोई एटॉमिक मास इनके जैसा ही सेम एटॉमिक मास का अगर एलिमेंट्स फाउंड होता है, तो उसने उसके लिए क्या किया था, वैकेंट प्लेस भी क्या किया था, छोड़ा था मेंडेलीव ने उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. अभी व्हाट इज द मेरिट्स ऑफ मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल. Now, atomic masses of the some elements were reversed so as to give proper place in the periodic table is according to the property. For example, determination. अभी जो atomic masses जो बेरिलियम का है वो 14.0.9 है, और बाद में वो चेंज होके 9.4 हुआ, तो वो इट्स कम बिफोर द बोरॉन. मतलब उसने क्या किया था, अगर बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो 14.9 है, तो वो करेक्ट होके क्या हुआ, 9.4 हुआ, तो उसने प्रॉपर उसको बोरॉन के पहले क्या किया था, प्लेस दिया था. ये उसका मतलब मेरिट्स था. अगर दूसरे जो साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम को बोरॉन का जो एटॉमिक मास है उसके हिसाब से उसको अरेंज नहीं किया था. लेकिन जो मेंडेलीव था उन्होंने क्या किया था, बेरिलियम के एटॉमिक मासेस के हिसाब से उसको क्या किया था, अरेंज किया था. Now there is a second one is there. Mendeleev keep the vacant place in the periodic table for the not discover elements. मतलब जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उसने जो बाद में डिस्कवर हुए उनके लिए उसने क्या किए थे, प्रॉपर एक प्लेस छोड़े थे. तो उनका जो नॉन डिस्कवर थे उनको उसने क्या क्या प्लेस दिया था, नेम दिए थे, इका बोरॉन, देन इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन. और बाद में जब इन्वेंशन होके when he did the invention and he get the proper element, that time he changed that Ika boron is changed into the
scandium, and that Eka aluminum is changed into the gallium, and the Eka silicon is changed into the germanium. Means he changed that elements into this one. मतलब ये इसने ये चेंजेस किया था. अगर दूसरा कोई मतलब साइंटिस्ट रहता तो उसने अगर उसको वैकेंट प्लेस नहीं रखा होता तो ये जो न्यूली फॉर्म एलिमेंट्स है वो उसमें वो नहीं रख सकता था. ऐसे हुआ था वो. और बाद में उसने देखो इका एल्यूमिनियम का अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे होते तो एटॉमिक मास ऑफ इका एल्यूमिनियम का 68 है, एंड विच वन इज फॉर्म ना गैलियम इसका 69.7. मतलब अप्रोक्सीमेटली वो क्या था, एकदम नजदीक थे. मतलब इसने जो प्रेडिक्ट किया था और बाद में जो रियली में एक्चुअल में उसने इन्वेंशन करके जो फॉर्म हुआ तो उसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली उसमें क्या था, डिफरेंट था, लेकिन वो एज इट इज सेम थे. एटॉमिक मास ऑफ इका एल्यूमिनियम देखो 68 है और गैलियम का कितना था 69.7 और डेंसिटी 5.9 देन 5.94. मींस देयर इज अ मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो लो, their melting point is also low. Molecular formula is ECl2 and gallium is also GaCl2. Means there is the same things are there. There is no so much changes in that predicted elements and invented elements. मतलब जो predict किया था उस elements में और जो invention properly हुआ elements का उसमें और उसमें कुछ भी इतना ज्यादा फर्क नहीं था. इसलिए उसका जो ना atomic मेंडलीव्स का जो पीरियडिक टेबल है ना वो प्रॉपरली बना था, क्योंकि उसने क्या किया था, सब चीजें क्या किए थे ध्यान में रखे थे. उसने प्रॉपर प्लेस छोड़ा था एलिमेंट्स के लिए. अभी थर्ड वन उसका जो मेरिट्स था, मेरिट्स मतलब अच्छी बातें उसकी थी, तो उसमें क्या था, देयर वाज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैस. मींस देयर वाज नो रिजर्व, there was no place for the reserve for the noble gas in the Mendeleev original periodic table. मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है नोबल गैस को भी क्या किया था, प्रॉपर प्लेस दिया था. लेकिन जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये डिफरेंट है. क्योंकि मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया ना तो उसमें उसको जो जो ड्रॉबैक्स आए ना वो उसने उसके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, उसका चेंजेस किया था. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसने ऐड क्या किया, उसमें नोबल गैस थे ना उसको भी उसने क्या किया था, प्रॉपर प्लेस दिए थे. अभी और वो नोबल गैस थे, उन नोबल गैस को कौन से ग्रुप में डाला था, जीरो ग्रुप में डाला था. कौन से, जीरो ग्रुप में. नाउ देयर इज अ डिमिट्स. अभी दोस थिंग्स हैव गुड थिंग्स. मतलब कोई भी चीज अगर अच्छी होगी तो उसकी कोई ना कोई तो कमियां भी होगी. लाइक दैट देयर इज अ merits are there in Mendeleev periodic table. Like that there is a demerits also there. मतलब जैसे उसकी अच्छाई थी वैसे उसकी कोई कोई काम में उसका अनसक्सेसफुल हुआ था. तो वो कौन कौन से देते थे. The whole number atomic mass of element of cobalt and nickel are same. मतलब जो कोबाल्ट और निकेल है ना इन दोनों के जो एटॉमिक मास है ना वो सेम है. तो इसके लिए जो मेंडलीव्स था वो भी कंफ्यूज हुआ था कि इन दोनों को कौन से, ऑब्वियसली मैं कोबाल्ट को आगे रखूं या निकेल के आगे रखूं, क्योंकि एटॉमिक जो मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल बना है वो किसके हिसाब से बना था, एटॉमिक मासेस के ऊपर से. तो एटॉमिक मास अगर कोबाल्ट का भी सेम है और निकेल का भी सेम है तो दोनों को वो एक ही प्लेस पर मतलब उसमें वो चेंजेस नहीं कर, मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहा था. नाउ सेकंड वन इज द आइसोटोप वेर डिस्कवर लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडलीव्स पुट द फोर्थ पीरियोडिक टेबल as isotope have the same chemical property but different atomic masses. Change, changes was pause in the placing them in the Mendeleev periodic table. मतलब जो मेंडलीव टेबल जो आइसोटोप्स थे ना तो उसमें आइसोटोप में क्या हुआ था, वो लॉन्ग टाइम में पहले एलिमेंट्स फॉर्म हुए बाद में आइसोटोप्स फॉर्म हुए. तो जो आइसोटोप्स में जो एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी थी वो डिफरेंस थी. मतलब एटॉमिक मास उसका डिफरेंट लेकिन उसका आइसोटोप मतलब एक ही नंबर है
एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन उसका एटॉमिक मास और आइसोटोप का नंबर वो क्या था, चेंज था। इसलिए इसमें क्या हुआ, मेंडलीव्स क्या हुआ, इसमें भी थोड़ा सा उनमें मतलब वो अनसक्सेसफुल हुआ। When the elements are arranged in increasing order of atomic masses, the rise in the atomic mass does not appear to the uniform. It was not possible therefore to predict how many elements could be discovered between the two heavy elements. Now for example, अगर उसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फॉर्म किया और बाद में उसको सोडियम मिला, तो ये दोनों के बीच में कितने हेवी एलिमेंट्स फॉर्म होने वाले हैं बाद में, ये वो प्रेडिक्ट नहीं कर नहीं कर पाया। मतलब प्रॉपरली बता नहीं पाया कि इन दोनों में इतने इतने एलिमेंट्स क्या हो गए, फॉर्म हो गए। तो ये उसका एक क्या था, ड्रॉबैक था। नाउ देयर इज अ फोर्थ वन ड्रॉबैक इज देयर, position of hydrogen show the similar with the halogen. For the example, the molecular formula of hydrogen is H2, while the molecular formula of fluorine and chlorine are F2 and Cl2 respectively. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkaline metal. There is a similarity in the molecular formula compound hydrogen and alkali metals formed with the chlorine and ऑक्सीजन। मतलब उन्होंने क्या बताया कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उनको हाइड्रोजन के पोजीशन के ऊपर क्या था, मतलब उसने प्रॉपरली हाइड्रोजन को पोजीशन नहीं दे पाया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मतलब मोलेकुलर फॉर्मूला था H2 था, तो फ्लोरीन का भी F2 और क्लोरीन का भी F2, तो ये हेलोजन ग्रुप में थे। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये फर्स्ट ग्रुप में है, और ये जो है वो हेलोजन ग्रुप मतलब सेवन ग्रुप में है, ये जो क्लोरीन है। तो जो हाइड्रोजन है वो सेम प्रॉपर्टीज क्लोरीन के जैसा ही क्या करता है, शो करता है। तो उसको ये समझ में नहीं आता कि हाइड्रोजन को मैं फर्स्ट ग्रुप में रखूं या सेवन ग्रुप में रखूं। इसके लिए वो हाइड्रोजन के प्लेस के लिए क्या था, वो कंफ्यूज था मेंडलीव। अभी ये सब उसके डिमेरिट हो गए। अभी हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल टाइम ऑफ 10 मिनट, हाँ तो अभी क्या करूं, जो आया ना बीच में, हाँ अब अपग्रेड करो, नहीं बंद करो, ऊपर एक्स करो ना, 10 minutes more guys। हाँ Now, what is the meaning of modern periodic table? Modern periodic table मतलब जो मेंडलीव में जो गलतियां की थी ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या किया, उसको सही किया। अभी उसमें हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, which things are present in the modern periodic table we are going to learn। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने रोज है, कॉलम्स क्या है, और कौन से रोज में कौन से उसमें बहुत सारे, there are 18 things are there। Now we are going to learn। Now see there, modern periodic table, the classification of element resulting from the arranging the elements in an increasing order of atomic number is a modern periodic table। मतलब ये सब जितने भी डोबेरायरस था, न्यूलैंड्स था, मॉडर्न मेंडलीव था, इन तीनों ने भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एटॉमिक मासेस को दिया था, बराबर। तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स का क्या होता था, अरेंजमेंट होता था। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसका क्या होने लगा, अरेंजमेंट होने लगा। तो ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट किसने चालू किया था, मेंडलीव नहीं, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स कैन बी predicted more actually with the help of the modern periodic table from the basic atomic number। Now what is a modern periodic table? There is a modern periodic table there are so many things are there। in modern periodic table there are 7 horizontal rows are there। उसमें कितना rows होते थे, 7 horizontal rows are there। what we call that one
periods. What we call that one? 7 horizontal rows there, we call that one periods. And there is a 1 to 7 similar, 1 to 7 is their vertical column is there. क्या रहता था उसको? वर्टिकल कॉलम. तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? ग्रुप्स बोलते थे. क्या बोलते थे? ग्रुप्स. मतलब 7 जो हॉरिजॉन्टल्स थे रोज, उसको क्या बोलते थे? पीरियड्स. और जो 1 टू 7 1 टू 17 मतलब 1 टू 7 1 टू 18 था, उसको क्या बोलते थे? ग्रुप्स बोलते थे. The arrangement of the periods and groups result in the formation of the box. Atomic numbers are serially indicated in the upper side of the box. मतलब जो atomic number है, जो atomic number है, आप periodic table आप देख रहे होगे टेक्स्ट बुक में, तो आपको देखो जो मॉडर्न periodic table में जो ब्लू कलर में एटॉमिक नंबर दिया है और उसके नीचे इनिशियल नेम ऑफ दैट एलिमेंट्स दिया है. मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का देखो H दिया है और उसका एटॉमिक नंबर 1 दिया है. लिथियम का उसका Li दिया है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है. मींस लाइक दैट देयर इज अ एटॉमिक नंबर इज गिवन इन द upper side of that box. Now there is a another one thing is there in the modern periodic table. each box contain one elements. मतलब हर एक बॉक्स में कितना एलिमेंट्स होता है? 1 एलिमेंट्स होता है. Now there is a apart from the 7th rows, 2 rows are shown separately are down of the bottom. मतलब जो 7 rows from first to 7 वो अलग रोज है और जो 2 rows more है वो नीचे. तो जो जो एक्स्ट्रा जो रोज है वो देखो एफ ब्लॉक है, उसका क्या है? एफ ब्लॉक है. तो उसको उसने डिवाइड किया था किसमें? अरिथमेटिक. मतलब उसको उन्होंने नाम क्या दिया था मॉडर्न पीरियडिक टेबल में? देयर इज अ लैंथेनाइड एंड एंटीसाइड सीरीज. मतलब जो 7 ग्रुप छोड़ के जो 2 हॉरिजॉन्टल बॉटम में थे ना, जो 2 ग्रुप, उसको लैंथेनाइड और एंटीसाइड ऐसे नाम दिया था उसने. बाद में जो there are 118 elements are there in the periodic table. मतलब modern periodic table था ना. Now the remaining part we see the next time, means tomorrow. हाँ, okay, day after tomorrow. Thank you. Thank you guys. Bye.